Hello students, hope all of your summer vacation goes very well. Today we will revise the first chapter, that is computer history and its classification. So first we have to know the history of the computer. So who made the computer or who invented the computer? Actually it is a question that does not have a simple answer, okay, because there were many inventors who contributed to the development of computers. मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, इन्वेंटर्स हैं जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया. ये जायज़ बात है कि ये एक ही स्टेप में नहीं हुआ. ऑफ कोर्स दिस डेवलपमेंट डिड नॉट हैपन इन वन स्टेप, देयर वर वेरियस स्टेजेस. सो let us see how the different stages in the development of computer comes. Okay, the term computer came from the word compute. Okay, जो computer शब्द है वो हमें कहाँ से मिला है? compute, जिसके मतलब है काउंट करना और कैलकुलेट करना. ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे? we used our fingers, toes and bones to count any number. Okay, then there comes abacus. You all know about abacus. Abacus was the first calculating device invented by the Chinese around 5000 years ago. Okay, next, Napier bones. What is Napier bones? Napier bone was invented by John Napier. John Napier was a Scottish mathematician and scientist. Okay, so Napier's bones were multiplication table written on strip of wood or bones. Okay, इससे क्या होता है? हम कुछ भी चीज़ को मल्टीपल कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस दिस नेपियर्स बोन्स डिवाइसेस से. ठीक है, दिस इन्वेंशन हेल्प्ड इन मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स. ओके, देयर आर 9 different bones or strips with numbers marked on them, as you can see in the picture, top picture. Okay, next is Pascaline. The Pascaline invented by Blaise Pascal in 1642. Okay, तो Pascaline क्या कौन इन्वेंट किया? Pascaline इन्वेंट किया Blaise Pascal ने. It was a mechanical calculator. Okay, this device was invented for the purpose of addition and subtraction also by turning discs at the bottom of the device. Okay, so कैसे ये काम करता है? ये क्या काम करता है Pascaline? Pascaline बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है और इसका काम क्या होता है? वायर टर्निंग डिस्क एट द बॉटम ऑफ द डिवाइस वी कैन डू ऑल दोस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हमें वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना होता है? वो नीचे की तरफ कुछ डिस्क होते हैं, उसको टर्न करना होता है. ठीक है, उसको टर्न करके हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है. नेक्स्ट इज after crunching the handle the answers appeared on a window. Okay, so we have to put the number of those we want to subtraction or addition. Then after crunching we have to crunch the handle. Whenever we are crunching the handle the answers will appear on a window. Okay, this is how Pascaline looks like. You can see it in the picture. Next is analytical engine. What is analytical engine? The analytical engine is an important step in the history of computer. Okay, कंप्यूटर के हिस्ट्री में एनालिटिकल जो इंजन है वो एक महत्वपूर्ण स्टेप है. इट वॉज द फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. ओके, तो एनालिटिकल इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन है. इट वॉज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज. ओके, इन 1833. तो किसने इन्वेंट किया एनालिटिकल इंजन को? चार्ल्स बेबेज ने. कौन से साल में? 1833 में. एंड इट वाज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. ओके, so he is known as the father of modern computer. So the Charles Babbage is known as the father of modern computer. Okay, this machine was designed to perform complex mathematical calculations. So इससे क्या होता था? एनालिटिकल इंजन से complex mathematical calculations जो होता है वो हम इससे कर सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट है tabulating machine. What is tabulating machine? In 1890, Herman Hollerith invented the tabulating machine to process the data for US census. Okay,
तो किस लिए यूज़ हुआ, किसने यूज़ किया था ये टेबुलेटिंग मशीन को? हरमन होलीरेथ ने। किस लिए यूज़ किया था? कुछ डेटा प्रोसेस करने के लिए, जो डेटा किसके काम आ रहे थे? यूएस सेंसस में। दिस डिवाइड कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन which had been punched on the card. ओके, सो ये मशीन क्या कर सकते थे? ये मशीन जो है टेबुलेटिंग मशीन, ये ऑटोमेटिकली कुछ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे। कहाँ से? जो मशीन के अंदर हमने पंच किया है, ठीक है, जो कार्ड के थ्रू हमने पंच किया, उस इंफॉर्मेशन को ये टेबुलेटिंग मशीन रीड कर सकता था। इन लेटर ईयर्स Hollerith's machine became very useful for wide variants of statistical applications. Okay. So Hollerith machine कब यूज़फुल हुआ? कुछ सालों बाद। किस लिए ये वेरी यूज़फुल हो गया? किस लिए ये बहुत काम में आए? क्योंकि ये कुछ स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम करने लगे थे। इन February 1924 the Hollerith company changed its name to the International Business Machine or today's IBM. Okay, so 1924 फरवरी में क्या हुआ? जो कंपनी था Hollerith का, वो उसने अपना नेम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? IBM। आजकल जो आप कंपनी देखते होंगे IBM, वही IBM, और ये पूरा नाम उनका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, सो दीज आर द टेबुलेटिंग मशीन्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो आजकल हम लोग कंप्यूटर हर जगह यूज़ कर रहे हैं। नाउअडेज इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वर्क, फीचर्स, फंक्शनैलिटी etc. varies from place to place. So it was required to develop different types of computers. Okay, so how do we develop the different type of computers? Based on their features, their functionality, their ability of doing the work etc. We can categorize the computer through the generations of computer. Okay, so what does generations means? Generations means the time period when a computer is being developed. Okay, so what is generation? Generation is the time period when a computer is being developed. Okay, so after each and every generation the technology of computer has advanced to fulfill human needs. So let us look at the different generations of the computers. First comes the first generation of computers. The first generation of computers used vacuum tubes for circuit and magnetic drums for memory and were as big in size as big a room. So जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो कब तक यूज़ होता था? 1940 से लेकर 1956 तक। और ये क्या यूज़ करता है सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम्स के लिए? वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करके सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स बनाया जाता था, जो मेमोरी के स्टोर करने के लिए यूज़ होता था, और वो लगभग एक रूम के जैसा बड़ा होता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप लोग इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज द वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, दीज आर द फीचर्स। तो क्या है फर्स्ट फीचर? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड द वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट, नंबर 2 क्या है? इट was expensive, consumed large amount of electricity and generated a lot of it. Okay, तो इससे क्या होता था? वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई लगता था। उसके बाद क्या है? और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। नेक्स्ट, दिस कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी एंड रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो मेमोरी के लिए ये वाला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करता था? मेमोरी के लिए वो मैग्नेटिक ड्रम्स जो होते हैं ना, वो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कैसे ऑपरेट करता था? वो ऑपरेट करता था मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके। व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर का ही पता होता है कि ये इस लैंग्वेज से हमें, ये वर्ड से हमें ये बताना जा रहा है। ठीक है, बताना चाह रहा है। तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है उसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेजेस।
ठीक है। तो वो तब के ज़माने में वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था ये वाला कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप एंड द आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स। तो इससे क्या होता था, इसका जो इनपुट होता था, अभी हम लोग कैसे इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से या स्कैनर से। ठीक है। पहले क्या होता था, कुछ पंच कार्ड होता था और पेपर का टेप होता था, उससे हमें क्या करना होता था, उससे हमें करना होता था, इनपुट देना होता था। ठीक है। और जो आउटपुट होता है, आजकल हम आउटपुट कैसे करते हैं, नॉर्मल आउटपुट हमको मॉनिटर में ही दिखता है, लेकिन नहीं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए आउटपुट कैसे होता था, आउटपुट होता था प्रिंट आउट में। ठीक है। जो भी कुछ आप काम करना जा रहे हो उसका पूरा प्रिंट आउट में ही का ये आता था। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिवैक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ENIAC और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके। तो क्या है एग्जांपल इसका, हावर्ड्स एइकेन्स मार्क 1 1944 में आया था। नेक्स्ट, मोंकली एंड इकर्ट्स ENIAC 1946 में आया था। ठीक है। ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? द फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था वो किससे रिप्लेस हो गया, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गया। ओके। नेक्स्ट, इट वॉज स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉलर हो गया, छोटा हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया, कम खर्चे वाला हो गया, और सबसे बड़ी बात जो है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूमर हो गया। तो क्या हुआ, जो पावर सप्लाई उसको लगता था वो बहुत कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस फॉर प्रोसेसिंग। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज होता था प्रोसेस करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रन। तो क्या हुआ, कोबोल और फोर्ट्रन जैसे कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गया जो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पे ही डेवलप किया गया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या यूज होता था, मैग्नेटिक कोर्स, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क यूज होता था। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, IBM 1401 PDP-1, ये सारे क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। ओके। सो ये अच्छे से पढ़ना बुक को और वीडियो को अच्छे से सुनना, बाकी के रिवीजन हम नेक्स्ट दिन में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।